Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video, we will create the rock paper scissor game in Python. Okay, I hope आप सभी लोगों ने ये गेम खेला ही होगा. अगर नहीं खेला है तो कोई बात नहीं. हम इस गेम के रूल समझ लेते हैं, then we will create the project. ठीक है. So first of all, ये गेम में दो players होते हैं and there are three option rock, paper and scissor. And दोनों player को एक एक option select करना होता है. अगर दोनों player ने same option select किया तो game will be tie. Okay, and if player 1 selects rock and another player selects scissors, then rock will beat scissor. Similarly, scissor will beat paper and paper will beat rock. So इस गेम का लॉजिक क्या है? Why rock beats scissor is rock can crush the scissor. Similarly, scissor can cut the paper, therefore scissor beat paper, and paper can hold the rock, therefore paper beats rock. ठीक है. आई होप आपको ये रूल्स क्लियर होंगे. नाउ लेट्स सी द डेमो ऑफ द गेम to understand the approach we will follow while coding. Okay, so the first step is the computer will ask us to enter our name. So let's enter our name. Okay, so here it is asking us to enter the choice. We will use rock. The computer is displaying your choice as rock, which we have entered, and the computer's choice is scissors. Here scissors is selected randomly. Okay, and according to the rule rock beats scissors, so here we will win, and it is displaying rock beats scissor. Okay, then it is asking us to whether you still want to continue. If we type y, now the game repeats again. Here again it is asking us to enter our choice. Now let's enter paper. Now here our choice is paper, computer's choice is scissors, and here we lose. Scissors beats paper, and it is asking again, do you still want to continue? Now we don't want to continue. Let's enter n. Now here if you notice, it is displaying the message thank you for playing, and it is also displaying computer scores and the user score. Both the score are 1 because we have played two game, and one game is won by the user and the second game was won by the computer. Therefore both the score are 1 and 1. Okay, I hope you have understood the demo, and now let's स्टार्ट कोडिंग. ओके, सो सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर स्कोर एंड यूजर स्कोर. ठीक है, जो स्टोर करेगा स्कोर ऑफ बोथ दी प्लेयर्स. ठीक है, एंड आफ्टर वी एग्जिट फ्रॉम द गेम इट विल डिस्प्ले द स्कोर ऑफ बोथ द प्लेयर. वन इज द कंप्यूटर एंड द सेकेंड प्लेयर इज अस हु इज राइटिंग द कोड और हु विल बी रनिंग द कोड. ओके, सो here we have created two variable, computer score and user score, and both are initialized to 0. Both this variable will store score of both the player. The second step is, as there are two users, one user is the one who is running the code, and that user will enter its choice from the keyboard. Okay, and the second user is the computer. तो अभी कंप्यूटर का जो भी चॉइस होगा वो रैंडम होना चाहिए. सो अभी हमें तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रैंडमली सिलेक्ट करना है एवरी टाइम द गेम स्टार्ट्स. ये दो लाइन ऑफ कोड क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें तीन स्ट्रिंग्स है, रॉक, पेपर एंड सीजर्स. राइट, ये तीन ऑप्शंस में से कंप्यूटर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है, एंड अगर आपको पाइथन के लिस्ट के बारे में पता होगा या फिर जनरल एरे के बारे में पता होगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है. तो रॉक का इंडेक्स 0 होगा, पेपर का इंडेक्स 1 होगा एंड सीजर्स का इंडेक्स 2 होगा. क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर चॉइस वेरिएबल बनाया. ऑब्वियसली कंप्यूटर चॉइस वेरिएबल में कंप्यूटर का चॉइस स्टोर होगा. ठीक है, लेकिन अब ये चॉइस एक रैंडम होना चाहिए. ठीक है, अब ये कैसे कर रहे हैं देखो. ये क्या है, ऑप्शंस. हमने यही लिस्ट को यूज किया. इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये लिखा है रैंडेंट 0,2, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस गेम का. ठीक है, रैंडेंट 0,2 क्यों है? रैंडेंट मेथड क्या करता है, हम जो भी दो नंबर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 0,2, सो उस रेंज में 0 to 2 में कितने नंबर्स है, 0, 1 एंड 2. ये तीन नंबर में से रैंडेंट मेथड कोई भी एक रैंडम नंबर को सिलेक्ट करेगा. हमने 0,2 ही क्यों दिया? बिकॉज there are three elements in the list and the first element का index is 0 and the last element का index is 2. so 0, 1 and 2 से एक नंबर randomly select होगा and that number will act as a index to the options list.
ठीक है। सो यहाँ पे अगर रैंड इंट 0,2 ने 1 सिलेक्ट किया, सो यर कंप्यूटर चॉइस में क्या स्टोर होगा, ऑप्शंस ऑफ 1, ठीक है। ऑप्शंस ऑफ 1 क्या है, पेपर, सो कंप्यूटर चॉइस पेपर स्टोर करेगा। जब रैंडेंट ने सिलेक्ट किया 2, ये पूरा रैंडम होने वाला है, सो ऑप्शंस कंप्यूटर चॉइस में क्या होगा, ऑप्शंस ऑफ 2 विच इज सीजर्स। सो इतना हम अभी रन करके देखते हैं, चेक करते हैं रैंडम सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा कंप्यूटर चॉइस, राइट। नाउ लेट्स चेक दिस। अभी देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, रैंडेंट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज रैंडेंट एक मेथड है कौन सी लाइब्रेरी का, रैंडम लाइब्रेरी का, और यहाँ पे हमने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम अभी रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेंट। अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कंप्यूटर चॉइस सिजर्स। फिर से अगेन वी विल रन सिजर्स पेपर, सिजर्स पेपर, सिजर्स पेपर, मतलब ये रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। रॉक अभी तक नहीं आया, देखो रॉक ये रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है, कोई भी 0,012 में से एक नंबर सिलेक्ट होगा एंड दैट नंबर विल एक्ट एज ए इंडेक्स टू द ऑप्शंस लिस्ट एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट अ रैंडम वैल्यू ऑफ कंप्यूटर चॉइस। ओके, इतना क्लियर है। ओके, अब हम अगर डेमो में देखेंगे, जब भी हम जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, एंड व्हेनेवर वी प्रेस वाई, सो गेम फिर से रीस्टार्ट हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो गेम अगर रिपीट हो रहा है, प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ रिपीट हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू नो द आंसर, दैट इज लूप, ठीक है। वी विल रिपीट द लूप व्हेनेवर वी प्रेस वाई, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम तो गेम प्ले करना ही है, तो एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे कंटिन्यू गेम, और उसको इनिशियलाइज करेंगे वाई से, ठीक है। ये हम समझेंगे क्यों। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया कंटिन्यू गेम, वी हैव इनिशियलाइज्ड इट टू वाई। अभी देखो इनिशियली वाई है, अभी हमें लूप चाहिए, तो इसके लिए हम एक वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल, ठीक है। ये लूप का कंडीशन क्या होगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कंटिन्यू गेम वाई है, ठीक है। इनिशियली वाई था, तो लूप एंटर करेगा और चेक करेगा इज कंप्यूटर गेम इक्वल टू वाई, यस इट इज, कंटिन्यू गेम इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये लूप के अंदर जाएगा, एंड लूप के अंदर जब भी फर्स्ट गेम एंड होगा, हमें पूछेगा डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू और नॉट। इफ वी प्रेस यस, अगेन वाइल लूप कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से गेम रिपीट होगा। इफ वी प्रेस नो, तो वो डायरेक्ट थैंक यू फॉर प्लेइंग एंड कंप्यूटर स्कोर एंड यूजर स्कोर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये लूप के पहले हमें एक चीज और ऐड करना है कि देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे कंप्यूटर यूजर का नाम पूछ रहा है, ये हमने अभी तक लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, एक यूजर नेम वेरिएबल बनाया, एंड इनपुट मेथड से हम उस यूजर का नाम ले रहे हैं जो भी खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद वही है कंटिन्यू गेम इक्वल टू वाई, जो हमने पहले अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट लॉजिक से, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर चॉइस आ गया है, अभी हमें यूज़र नेम भी आ गया है, लेकिन ये यूज़र नेम तो सिर्फ इंटरैक्टिव बनाने के लिए, यूज़र नेम का हमें इतना फ़ायदा नहीं है। अभी हमें क्या चाहिए, यूज़र चॉइस। अभी हमने देखो यहाँ से नेम लिया, एंटर योर चॉइस। अब ये जो चॉइस एंटर करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही होगा। ये मिलने के बाद हम दोनों चॉइसेस को कंपेयर करेंगे एंड विनर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ईजी है। अब ये दो लाइन जो लूप में है क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट क्या करेगा, प्रिंट हाई यूजर नेम जो हमने यहाँ पे स्टोर किया, फिर करेगा एंटर योर चॉइस, फिर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ यूजर चॉइस, एंड इट विल टेक द इनपुट ऑफ द यूजर चॉइस। सिंपल, इतना क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, दोनों चॉइस है, यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। एंड अगर आप एक चीज अगर नोट करोगे, कंप्यूटर चॉइस में क्या स्टोर होगा, एक वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। एंड ऑप्शंस में जो भी सारे स्ट्रिंग्स है, रॉक पेपर सीजर, सारे अपर केस में। एंड हम जो इनपुट ले रहे हैं यूजर से, कभी हम अपर केस डाल देंगे, कभी लोअर केस डाल देंगे, या फिर कभी मिक्स डाल देंगे। सो हमें दोनों को बैलेंस करना है। सो अगर कंप्यूटर चॉइस अपर केस में है,
तो हम लोग यूजर चॉइस को भी अपर केस में ही कन्वर्ट करेंगे, सो दैट वाइल कंपेयरिंग हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी यूजर चॉइस को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी पाइथन ने आपको एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन दिया है। तो इसके लिए हमारे पास एक डॉट अपर करके मेथड है। इफ वी राइट यूजर चॉइस डॉट अपर, इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग, इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस एंड वी आर स्टोरिंग दैट कन्वर्टेड स्ट्रिंग अगेन इन द यूजर चॉइस, ठीक है। आई होप इतना आपको समझा होगा। अब हमारे पास दोनों चॉइस आ गया, कंप्यूटर चॉइस एंड यूजर चॉइस, एंड बोथ द चॉइसेस आर इन अपर केस। क्लियर। अब हमारा एक्चुअल कंपैरिजन स्टार्ट होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ गया है तो इस पॉइंट पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शन आ गए हैं, कंप्यूटर चॉइस एंड यूजर चॉइस। अब हमें दोनों ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन हमारे अपर केस में है, ठीक है। मतलब हम स्टेप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले करना है, ये दो जो लाइन है, योर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस। ओके, सो ये दो स्टेटमेंट अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, योर चॉइस इक्वल टू यूजर चॉइस जो हमारे पास है प्रिंट हो जाएगा। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू जो कंप्यूटर चॉइस हमने यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट किया है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने आपको गेम के रूल्स बताए थे, तो फर्स्ट रूल जो बेसिक रूल है, अगर दोनों चॉइसेस इक्वल हैं तो गेम इज टाइड। सो हम वो सबसे पहले वो चेक करेंगे वेदर बोथ द चॉइसेस आर इक्वल, एंड टू चेक conditions in programming we use if else statements, right? So यहाँ पे भी हम if else statement ही यूज करने वाले हैं। सो अगर आपको ये समझा होगा, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ यूजर चॉइस इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, वो चेक कर रहा है क्या दोनों चॉइस इक्वल है। अगर येस है तो ये स्टेटमेंट दैट इज गेम टाई प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अगर दोनों चॉइस इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों चॉइस यूजर चॉइस एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल नहीं है, तो हमें दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा अनइक्वल केसेस के, तो ठीक है। सो अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो हम दूसरा कंडीशन कैसे लिखेंगे, एलिफ स्टेटमेंट से। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है, दैट इज इफ बोथ दी ऑप्शंस आर नॉट सेम, सो हम चेक करेंगे वेदर यूजर चॉइस इज रॉक। सो अगर यूजर चॉइस रॉक होगा तो अभी कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन होगा, बिकॉज हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कांट बी रॉक। सो कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन होगा, पेपर एंड सीजर्स का। सो ठीक है, सो हम फर्स्ट चेक करते हैं इफ यूजर चॉइस इज रॉक, इनसाइड ये इसके अंदर आएंगे, ये एलिफ ब्लॉक के अंदर, फिर हम चेक करेंगे वेदर कंप्यूटर चॉइस इज पेपर है क्या। अगर यूजर चॉइस रॉक है, कंप्यूटर चॉइस पेपर है, तो क्या होगा, कंप्यूटर जीत जाएगा एंड यूजर लूज द मैच, ओके। अभी ये एलिफ के अंदर एलिफ क्या कर रहा है, तो चेक कर रहा है वेदर यूजर चॉइस इज इक्वल टू रॉक। अगर ये ट्रू है तो ये अंदर आएगा, फिर ये इफ कंडीशन चेक होगा वेदर कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू पेपर है क्या। अगर ये केस ट्रू हो रहा है कि यूजर चॉइस रॉक है, कंप्यूटर चॉइस पेपर है, तो क्या हो रहा है, वी विल प्रिंट यू लूज एंड कंप्यूटर चॉइस दैट इज पेपर बीट्स रॉक, ठीक है। एंड वी विल इंक्रीमेंट कंप्यूटर स्कोर बाय 1, ठीक है, क्यों यहाँ पे कंप्यूटर जीत गया। अगर ये केस फॉल्स हो जाता है, मतलब ये अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है, तो मतलब क्या है, कंप्यूटर चॉइस अब क्या है, सीजर्स है, तो हम इसका एल्स केस लिखते हैं। अब ये एल्स केस कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एलिफ के अंदर वाला इफ जब फॉल्स होगा, ठीक है। तो एल्स केस मतलब क्या होगा, कंप्यूटर का चॉइस सीजर है एंड रॉक विल बीट सीजर, सो वी विल राइट यू विन यूजर चॉइस विच इज रॉक बीट्स सीजर, एक बार, एंड देन वी विल इंक्रीमेंट द स्कोर ऑफ यूजर बाय 1, ठीक है। सो हमने सबसे पहले क्या चेक किया, वेदर यूजर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस और नॉट। इफ दिस इज ट्रू देन वी विल प्रिंट गेम टाई, ठीक है। अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट इज, तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट वी कैन कंक्लूड दैट बोथ द चॉइसेस आर डिफरेंट। सो नाउ वी विल चेक इफ यूजर चॉइस इज रॉक। अगर ये है तो अभी कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन होगा, पेपर एंड सीजर। सो अगर यूजर रॉक है एंड कंप्यूटर पेपर है, तो क्या होगा, कंप्यूटर जीत जाएगा एंड यूजर विल लूज, सो वी विल प्रिंट यू लूज कंप्यूटर चॉइस बीट्स यूजर चॉइस, ठीक है। एंड वी विल प्रिंट कंप्यूटर स्कोर एंड वी विल इंक्रीमेंट कंप्यूटर स्कोर बाय 1। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, दैट इज कंप्यूटर चॉइस इज नॉट पेपर, व्हाट विल बी द एल्स कंडीशन इज कंप्यूटर चॉइस इज ऑब्वियसली सीजर, सो रॉक विल बीट सीजर, सो वी विल प्रिंट यू विन यूजर चॉइस दैट इज रॉक विल बीट सीजर एंड वी विल इंक्रीमेंट यूजर चॉइस बाय 1, ओके। सो हमने अभी फर्स्ट केस चेक कर लिया व्हेन यूजर चॉइस इज रॉक। अब हम सेकंड केस चेक करते हैं व्हेन यूजर चॉइस इज पेपर। सो इसके लिए हम एक और एलिफ ब्लॉक लिखेंगे एंड उसके अंदर एक इफ एंड एल्स ब्लॉक लिखेंगे जैसे हमने रॉक के लिए किया, ठीक है।
हमने अभी लिखा इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू पेपर, तो अभी इसके अंदर दो कंडीशन आएगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इफ कंडीशन फॉल्स है, दैट इज यूजर चॉइस इज नॉट इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, सो ऑब्वियसली कंप्यूटर चॉइस अभी डिफरेंट होगा पेपर से। सो कंप्यूटर के पास अभी दो ऑप्शन है, विच इज रॉक एंड सीजर। सो नाउ वी विल चेक इफ यूजर चॉइस इज पेपर एंड वेदर कंप्यूटर चॉइस इज सीजर। सो हियर हमने ब्लॉक में फर्स्ट एलिफ ब्लॉक में क्या लिखा, इफ यूजर चॉइस इज पेपर देन वी विल चेक इफ दिस इज ट्रू। सो ये इफ कंडीशन चेक होगा इफ कंप्यूटर चॉइस सीजर है क्या, मतलब यूजर चॉइस पेपर एंड कंप्यूटर चॉइस सीजर। इफ दिस इज द केस देन अगेन द यूजर विल लूज बिकॉज सीजर विल बीट पेपर एंड वी विल इंक्रीमेंट कंप्यूटर स्कोर बाय 1। if this condition is false, that is user choice is paper and computer choice is not Caesar, so अभी कंप्यूटर के पास और क्या ऑप्शन है, रॉक ही है, तो उसके लिए कंडीशन चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम एल्स ब्लॉक लिख देंगे। ठीक है, so here we have written the else block, that is the user will win, that is paper will beat rock, okay, and then we will increment user score। सिमिलरली अब ये अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, दैट इज यहाँ पे हमारा जैसे अभी तीन कंडीशन है, ये तो बेस कंडीशन है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या। फिर उसके बाद हम चेक करें वेदर यूजर चॉइस इज रॉक। इफ दिस इज फॉल्स देन इट विल चेक वेदर यूजर चॉइस इज पेपर। इफ दिस इज अगेन फॉल्स देन यूजर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली वो रॉक ही होगा। तो सेम इसके लिए भी हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हम एल्स एल्स ब्लॉक के अंदर सब लिख देंगे। ठीक है, सो अभी ये एल्स ब्लॉक के अंदर हम वैसे ही चेक करेंगे, दैट इज दिस एल्स ब्लॉक इज फॉर यूजर चॉइस scissors, राइट। दिस एल्स ब्लॉक इज फॉर यूजर चॉइस सीजर। हमने यहाँ पे क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी रॉक एंड पेपर वाला कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है तो यूजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो डायरेक्टली इधर ही आएगा सीजर में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे, इफ यूजर चॉइस इज सीजर्स, सो कंप्यूटर चॉइस के पास, कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन है, रॉक एंड पेपर। सो वी विल चेक वेदर कंप्यूटर choice is rock. If this is true, then rock will beat scissor, so the user will lose. And if this is false, that is this if condition is if computer choice is not rock, then computer choice is paper and scissor will beat paper. So here we will write you win, user choice, that is scissor will beat paper, okay, and we will increment user score। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया वेदर यूजर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, अगर ये फॉल्स होगा तो चेक करेगा वेदर यूजर चॉइस इज इक्वल टू रॉक। अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर का इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो हम चेक करेंगे रॉक भी नहीं है तो पेपर होगा, तो हम चेक करेंगे वेदर यूजर चॉइस इज इक्वल टू पेपर। अगर ये भी फॉल्स होगा देन वी विल कम टू अ डिसीजन दैट यूजर चॉइस इज सीजर, क्योंकि रॉक एंड पेपर नहीं है तो सीजर ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इफ एनी ऑफ द एलिफ कंडीशन और एल्स कंडीशन इज ट्रू, वी विल अगेन इनसाइड दैट उसके अंदर एक इफ एंड एल स्टेटमेंट है टू कंपेयर इट विद कंप्यूटर चॉइस, राइट। आई होप इतना तो आपको समझा ही होगा। देन अब यहाँ पे एक गेम खत्म हो गया है। ठीक है, हमने इंक्रीमेंट कर दिया कंप्यूटर स्कोर, यूजर स्कोर, अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास ऑप्शन है। अब हम पूछेंगे यूजर से डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। सो अभी हम यूजर से इनपुट लेंगे वेदर द यूजर वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर उसको कंटिन्यू करना है तो वो वाई प्रेस करेगा, अगर नहीं करना है तो एन प्रेस करेगा। ठीक है, तो अब ये जो इनपुट लेंगे हम कहीं तो स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं बताता हूँ कहाँ स्टोर करेंगे। यहाँ पे अगर हम वाइल लूप का कंडीशन देखेंगे, कंटिन्यू गेम इज इक्वल टू वाई। सो अगर हमने यहाँ पे अगेन कंटिन्यू गेम में ही इनपुट स्टोर कर दिया दैट इज वाई, तो ये फिर से वाइल लूप का कंडीशन ट्रू होगा एंड एग्जीक्यूट होगा। अगर नो किया तो वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड गेम एग्जिट हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए, तो हम कंटिन्यू गेम में ही इनपुट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछने के बाद हम कंटिन्यू गेम जो प्रीवियसली हमने क्रिएट किया है उसी में हम इनपुट लेंगे। अगर y होगा तो वाइल लूप फिर से रन होगा, n होगा तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जिट हो गया तो हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। देखिए कर्सर को नोट कीजिए, हम वाइल लूप के बाहर आ गए। अब हमें क्या प्रिंट करना है,
थैंक यू फॉर प्लेइंग एंड द कंप्यूटर स्कोर एंड द यूजर स्कोर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, थैंक यू फॉर प्लेइंग कंप्यूटर स्कोर, कंप्यूटर स्कोर हमने क्या प्रिंट किया, तीन प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में नॉर्मल लिखा थैंक यू, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में कंप्यूटर स्कोर प्रिंट किया, थर्ड में यूजर स्कोर प्रिंट किया। सो गाइस यहाँ पे रॉक पेपर सीजर का कोड कंप्लीट होता है। लेट्स रन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नेम पूछ रहा है, सो वी विल एंटर, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग हरितेश एंटर योर चॉइस, नाउ लेट्स एंटर रॉक, ठीक है। अब हमें क्या आया, योर चॉइस रॉक, कंप्यूटर चॉइस सीजर्स, यू विन, रॉक बीट सीजर्स, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, वी विल टाइप यस, वाई फॉर यस, ओके। देन अगेन इट इज आस्किंग, हम अभी पेपर डालेंगे, ठीक है। नोट करना मैंने ऊपर रॉक स्मॉल केस में डाला, अभी पेपर का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस है, बाकी स्मॉल केस है, तो भी कोई इशू नहीं होगा बिकॉज हमने डॉट अपर मेथड यहाँ पे यूज किया। कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम इस पे रन करते हैं। नाउ योर यूजर चॉइस विच इज आर चॉइस इज पेपर, ऑब्वियसली करेक्ट, एंड कंप्यूटर चॉइस इज सीजर्स, ठीक है। एंड डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू पूछ रहा है, यस करते हैं, ठीक है। नाउ हम डालेंगे सीजर्स। प्लीज़ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो फिर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। नाउ हियर इट इज यूजर चॉइस इज सीजर्स, कंप्यूटर चॉइस इज सीजर्स, गेम इज टाई, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, नाउ वी विल प्रेस नो, and here we are printing computer score 1, Ritesh score which is the user score 1, why because एक गेम में हम हार गए, therefore computer score एक से इंक्रीमेंट हो गया एंड फर्स्ट गेम में हम जीत गए, ठीक है। सो यहाँ पे एक इशू है, कोई बता सकता है, अगर आपको इशू मालूम पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। द इशू हियर इज, यहाँ पे देखो कंप्यूटर चॉइस फर्स्ट गेम में क्या है, सीजर्स, सेकेंड गेम में सीजर्स, थर्ड गेम में सीजर्स। क्या हो रहा है, कंप्यूटर चॉइस रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है, लेकिन क्यों ये बार बार सीजर दे रहा है, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट होता है, हमने कंप्यूटर चॉइस कहाँ सिलेक्ट कर दिया है, वाइल लूप के पहले, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस एक बार सिलेक्ट हो गया सीजर, देन वाइल लूप स्टार्ट हुआ, वाइल लूप के अंदर गेम रन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर चॉइस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यूजर चॉइस चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ यूजर चॉइस ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई अब जो हमारा ये स्टेटमेंट है ना, कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू ऑप्शंस ऑफ रैंडम 0,2, ये हमें लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर कंप्यूटर चॉइस एक बार सिलेक्ट होगा, फिर यूजर चॉइस सिलेक्ट होगा एंड देन गेम विल रन। वो जो पहले वाला एग्जीक्यूशन था उसमें ये फॉल्ट था, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ओके। सो अगेन वी विल एंटर सम अदर नेम, राइट। हियर वी आर एंटरिंग रॉक। So here see computer choice, our choice is rock, computer choice is paper, you lose, paper beats rock, ठीक है। अब हम फिर से yes करेंगे to continue। Now we will enter again rock। यहाँ पे देखो मैंने rock किया, फिर से मैं rock देता हूँ, यहाँ पे भी कंप्यूटर चॉइस सेम आ रहा है। वेट, यहाँ पे ये मत समझो कि सेम पहले वाला ही रिपीट हो रहा है, नहीं, ये कभी कभी रैंडम पेपर बार बार सिलेक्ट हो रहा है, मतलब रैंडमली वो इंडेक्स 1 सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी लिखते हैं पेपर। नाउ सी कंप्यूटर चॉइस चेंज हो गया, वो रैंडमली लूप के अंदर फिर से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। एक दो बार सेम आ सकते हैं। नाउ आर चॉइस इज पेपर, कंप्यूटर चॉइस इज सीजर्स एंड अगेन लॉस्ट द गेम, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लूज किया, यहाँ पे लूज किया, यहाँ पे लूज किया, 3 बार लूज किया, ठीक है। अब मैं अगर नो टाइप करूंगा तो मुझे कंप्यूटर स्कोर और आकाश स्कोर प्रिंट हो जाएगा। कंप्यूटर स्कोर क्या होगा, कमेंट डाउन बिलो। कंप्यूटर स्कोर होगा 3, यूजर स्कोर होगा 0, राइट। कंप्यूटर स्कोर 3, यूजर स्कोर दैट इज आकाश स्कोर इज 0। ओके फ्रेंड्स, यही था एक मिनी प्रोजेक्ट रॉक पेपर सीजर गेम का। ये एक कमांड लाइन के ऊपर है। आप कमेंट करो अगर आपको GUI बेस चाहिए यूजिंग tkinter इन पाइथन, अगर वो कमेंट आएगा तो मैं वो भी क्रिएट कर दूंगा। और इस पर भी हम बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू
ऑफ रॉक पेपर एंड सीजर हम एक मेनू ड्रिवन बना सकते हैं, लाइक 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर। तो वहाँ से और इंटरैक्टिव होगा और इजी होगा यूज़र को, ठीक है। आप अगर वैसा कुछ चेंजेस चाहते हो तो भी कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मॉडिफिकेशन लाऊंगा। अगर आपको GUI बेस्ड रॉक पेपर सीजर गेम चाहिए तो वो भी बताओ। एंड that's it guys for this video. That's it for this video. If you found this video helpful, please do like this video and please subscribe करो चैनल को। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ये चैनल का आई गेस फर्स्ट वीडियो है। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, एंड अगर कोई भी सजेशंस होगा प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, मुझको इम्प्रूव करना है। आई नो मैं इससे भी बेटर आपको बता सकता था, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। प्लीज़ अगर कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, बाय।